Hello everyone, welcome to our channel Computer Science Guide. In this video, we will be learning about introduction to object-oriented programming. Before that, I will suggest you to watch our previous video of basic concepts of Java. Okay, so that you can understand our further concepts in a more better way. Okay, so let's start with our video. And where is this video? Yeah, let's start from here. So what are objects? Objects are the basic building blocks for designing programs. An object is a collection of data members and associated member functions. If you don't understand the meaning of this line, that what are objects? Objects is a collection of data members. You don't know that what are data members and what are member functions. Then we will be knowing in a simultaneously in editor too. Okay, each object identified by a unique name. Each object must be a member of a particular class. For now, we will be going with theory, and after some time, doing, we will be understanding these all points on our editor. So for now, we have to just keep in mind of these points. Okay. So objects are the collection of data members and associated member functions. तो जो ऑब्जेक्ट है वो कलेक्शन है किसका डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस अगर आप लोग नहीं जानते डेटा मेंबर्स क्या होते हैं और मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं तो मैं भी आपको दिखा लेता हूँ ओके जिससे आपको और क्लियरली समझ में आए so here's our editor I have made a class person okay so what are the data members of person will be having a name string name okay it will be having he will be having an age so age in age okay and what else it can have it can have name age and gender will be in string gender so these are the data members and what are the member functions are like public void public void what should be right what name like m1 okay so it's a member function so what data object is a collection of data members and member functions okay when we will be creating an object suppose we are creating object of person class in our main method okay this is our main method of our class person so if we want to assess this method okay this method and these member functions these data members and this member function so what we have to do we have to create an object of class person तो हम लोग सबसे पहले पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे अगर हमें इस नेम एज और जेंडर को यूज करना है या फिर इस m1 को यूज करना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो बनाया जाता है जावा में उस तरीके से पर एक सबसे पहले क्लास का नाम ठीक है क्लास का नाम लिख दिया के बाद ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं मैंने ओबीजे दिया इक्वल टू न्यू ठीक है और फिर उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्टर ये मतलब पर्सन और ये ठीक है हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया किसका पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो हमें पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट से हमें पर्सन क्लास का नेम पर्सन का नेम एज और जेंडर और m1 फंक्शन को यूज करना है तो m1 फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ ऐसा पर्सन वन ठीक है तो अब हमें इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इन सब चीज़ों को यूज करना है इसको नेम देना है एज देनी है तो क्या करेंगे हम लोग ओबीजी डॉट मैंने जैसे ही डॉट लिखा देखो ये देखिए यहाँ पे क्या क्या आ गया एज जेंडर और नेम मतलब m1 एज और जेंडर और नेम को मैं यूज कर सकता हूँ तो मैं नेम देता हूँ सबसे पहले तो नेम क्या होगा ऑब्जेक्ट का
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की एज क्या होगी, पर्सन की एज क्या होगी, पर्सन की एज मान लीजिए आप 20 हो, तो बीच डॉट जेंडर मेल। ओके, यहाँ पे क्या ये इंट में है, ओके, और ओबीसी M1। तो सी नाउ हमने पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, तो ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट जो है ये पर्सन 1 है ना। तो इस पर्सन के पास क्या है, इस पर्सन के पास नेम है उसका अनुज, है ना, और इसकी एज 20 है और जेंडर मेल है, और हम पर्सन 1 प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब हम एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड वॉइड M2, और यहाँ पे पर्सन 2। ओके, पर्सन 2। अब हम क्या करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बना दे। ऑब्जेक्ट शुड हैव यूनिक नेम, जैसे हमने देखा था। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी सेम प्रोसीजर, पर्सन ओबीजे 2 बस टू पर्सन और सिंगल बना, ये हमारा ऑब्जेक्ट 2 बन गया। ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट 2 बन गया। अब ऑब्जेक्ट 2 का क्या क्या हो सकता है, सेम नेम हम दे देते हैं, पीछे डॉट नेम, नेम हम दे सकते हैं इसको राहुल। सपोज राहुल की एज क्या हो सकती है, राहुल की एज हो सकती है 2 कर देते हैं। राहुल की एज क्या हो सकती है, राहुल की एज हो सकती है 21, और राहुल का जेंडर क्या हो सकता है, राहुल का जेंडर है, ठीक है, और मेथड 2 असेस करेंगे हम लोग। तो हमारे पास 2 पर्सन है, पर्सन क्लास में 2 पर्सन है, एक है पर्सन 1 जिसका नाम है अनुज, एक है पर्सन 2 जिसका नाम है राहुल। तो ऑब्जेक्ट 1 में है क्या है, अनुज, और ऑब्जेक्ट 2 क्या है, राहुल। ओके, तो दिस इज हाउ वी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्क्स। ओके, तो अब इसी कोड से हम सब समझेंगे। तो ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड एसोसिएटेड मेंबर फंक्शन। तो डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेटा मेंबर्स होते हैं, और M1 M2 क्या है, ये मेंबर फंक्शन है। ठीक है? तो हम लोग अगर ऑब्जेक्ट जब हम लोग यूज करते हैं तो एज आई हैव शोन यू, जैसे हमने यहाँ पे ओबीसी के बाद डॉट लगाया, तो ये हमारे डेटा मेंबर शो कर रहा है जो हम लोग यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, और ये हमारे मेंबर फंक्शन। ओके, तो ईच ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइड बाय यूनिक नेम। मैंने दिखाया था आपको कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था ओबीजे से और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया था ओबीजे 2 से। तो हर एक ऑब्जेक्ट का एक यूनिक नेम होना चाहिए। ईच ऑब्जेक्ट मस्ट बी मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट थे वो पर्टिकुलर क्लास के मेंबर होने चाहिए। जैसे मैंने जो ओबीजे और ओबीजे 2 बनाया था वो पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट्स थे। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। प्रोटोटाइप, what are classes are the prototype or the blueprint from which objects are created। जैसे हमने एक पर्सन क्लास बनाई थी यहाँ पे, है ना, तो पर्सन क्लास से हम के अंदर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे, तो ये क्या हुआ, एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं हमें, पर्सन इज अ ब्लूप्रिंट।
तो प्रोटोटाइप और ब्लूप्रिंट फॉर विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। तो जैसे हमने पर्सन क्लास के लिए ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, OBJ1 और OBJ2। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स इज अ objects is a collection of data member and member functions. Class is a function of a collection of objects. तो सबसे ऊपर हायरार्की में हम लोग क्या रखते हैं, क्लास। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। समझ सकते हैं that have collection of objects that have identical properties, common behavior and a shared relationship. Once class is defined, we can create any number of objects of that class. हम लोग कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं उस क्लास में। पर्सन क्लास जैसे हमने बनाई थी जो, उसकी हम लोग n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, कितने भी। ओके, क्लासेस आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो क्लासेस हैं, क्लासेस को यूजर डेटा टाइप की तरह यूज कर सकते हैं। डेटा टाइप जैसे इंट फ्लोट होते हैं ना, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना। अगर हम रेफरेंस डेटा टाइप की बात करें तो वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ओके, a class can hold both data and methods. So as you can see, क्लासेस के पास डेटा भी है एंड मेथड भी है, M1 and 2। ओके, so it can contain both. See an example of this. There is a class person. एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, नेम। पर्सन की प्रॉपर्टीज क्या है, पर्सन क्या हो के पास क्या क्या होगा, पर्सन के पास नेम होगा, पर्सन की एक हाइट होगी, पर्सन की एक एज होगी। ठीक, उसका बिहेवियर क्या होगा, वो बोल लेता होगा, सुन लेता होगा, ईट करेगा। ये क्या होगा, मेथड्स होगा। ही कैन स्पीक, लिसन, ईट, रन, वॉक। ओके, सो ऑब्जेक्ट अगर हम बनाए पर्सन क्लास का, तो ऑब्जेक्ट वन कैसा होगा, ऑब्जेक्ट वन के पास नेम होंगे। ओके, तो नेम क्या है, एन, और हाइट क्या है, 5, है ना, 0.4, और एज क्या है, 21। उसका बिहेवियर क्या है, वो बोल लेती है, सुन लेती है, खा लेती है, चल लेती है, वॉक कर लेती है ना, रन कर लेती है, दौड़ लेती है। पर्सन टू के पास क्या है, पर्सन टू का भी नेम है ऑब्जेक्ट का, है ना, एडम, और उसकी भी 5.9 है, और एज 24 है। वो भी बोल लेता है, चल लेता है, लिख लेता है, कर लेता है। सो ये एक एग्जाम्पल था। तो नाउ आपको आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन नाउ। एब्स्ट्रैक्शन रेफर टू अ क्वालिटी ऑफ डीलिंग विद आइडियाज रेदर देन इवेंट, है ना। जैसे आपने अपनी बुक्स देखी होंगी, तो आपकी बुक्स में जो पहले दूसरे पन्ने पे आपने देखा होगा, टॉपिक्स लिखे रहते हैं, हर एक चैप्टर के टॉपिक्स लिखे रहते हैं, और उस टॉपिक्स में उस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट है, उसकी हेडिंग्स लिखी रहती है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसमें लिखा रहता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि हमने सिर्फ आपको ये प्रोवाइड किया है कि इसके अंदर क्या है ना। इट बेसिकली डील विद हाइडिंग द डिटेल्स एंड शोइंग द एसेंशियल थिंग्स टू द यूजर, है ना। अब हम उसमें पूरा चैप्टर तो लिख नहीं सकते एब्स्ट्रैक्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसेंशियल चीजें सिखा देते हैं कि हाँ इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। हम लोग इसमें एब्स्ट्रैक्ट में ये नहीं दिखाते कि उसके अंदर पूरा चैप्टर दिखा दें। हाँ, इट इंक्रीजेस द कॉम्प्लेक्सिटी। टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी वी यूज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये होता है कि हम लोग करना क्या है ये बताएगा, कैसे करना है वो अंदर उसके लिए रहेगा। ओके, इन जावा वी कैन इम्प्लीमेंट इट बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्शन को यूज करने के लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस का यूज करते हैं। तो दैट विल बी वी विल बी लर्निंग इन आवर फर्दर वीडियोस। तो नाउ व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। मैं इनकैप्सुलेशन, आप लोगों ने कैप्सूल तो देखी हो, कैप्सूल के अंदर कुछ पाउडर टाइप भरा होता है ना, कुछ पाउडर टाइप होता है। तो वैसे ही अगर हम समझें इसको, इनकैप्सुलेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ बाइंडिंग योर डेटा एंड पुट टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। अब जैसे एक क्लास है पर्सन, उस क्लास के अंदर क्या है, मेथड्स हैं, वेरिएबल्स हैं। तो क्लास क्या है, एक कैप्सूल है, उसके अंदर मेथड और वेरिएबल, एक पाउडर टाइप समझ सकते हैं हम लोग, है ना। तो कैप्सूल के अंदर जैसे होता है, क्लास क्या है, पर्सन क्या है, क्लास है, और मेथड्स और वेरिएबल्स उसके अंदर है, वो इनकैप्सुलेटेड है ना, सिंगल यूनिट। ओके, encapsulation equals to data hiding plus abstraction. Okay, what is inheritance? Inheritance is the concept where the properties of one class can be inherited by others.
है ना। जैसे हम लोगों ने बताया था कि अगर हम किसी फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाए ना, तो हम उसको कहीं और इनहेरिट करके नंबर पास कर सकते हैं उसके मेथड्स में, और हम लोग वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं फैक्टोरियल की, तो हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं। ओके, so there is a concept of superclass and subclasses in inheritance. Okay, into extend from one class to another we use the word extends. Okay, extends. अगर हम जैसे अभी हम लोग समझेंगे आगे। ओके, सुपर क्लास, व्हाट इज सुपर क्लास? सुपर क्लास इज अ क्लास whose features are inherited is known as सुपर क्लास, जिसके फीचर्स इनहेरिट होंगे चाइल्ड में, है ना, तो वो होगी सुपर क्लास। द क्लास दैट इनहेरिट्स द अदर क्लास इज नोन एज सब क्लास। जो क्लास इनहेरिट करेगी सुपर क्लास के फीचर्स को, वो होगी चाइल्ड क्लास, सब क्लास। और ड्राइव्ड क्लास, एक्सटेंडेड क्लास, चाइल्ड क्लास, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। सब क्लास कैन बी एट इट्स ओन फील्ड, है ना। और जो सब क्लास होगी, चाइल्ड क्लास होगी, वो मोर एफिशिएंट होगी सुपर क्लास, क्योंकि उसके पास खुद के भी फील्ड्स रहेंगे, मेथड्स रहेंगे, और सुपर क्लास के भी फील्ड्स और मेथड्स रहेंगे, तो इट इज मोर एफिशिएंट, है ना। जैसे किसी के पेरेंट्स होते हैं, तो उनका बच्चा के पास वो सारी चीजें तो होती हैं जो उनके पेरेंट्स के पास है, वो एडिशनली और भी चीजें ऐड करता है अपनी प्रॉपर्टी में, है ना। ऐसे समझ सकते हैं। तो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? ना, पॉलीमॉर्फिज्म मींस टेकिंग many forms, where poly means many and morph means forms. Okay, polymorphisms allow you to define one interface or method and have multiple implementations. Java it is of two types, static polymorphism and dynamic polymorphism. तो polymorphism क्या होता है? एक तरीके, एक चीज को कई जगह यूज करना। ओके, नाउ यू कैन सी एज हियर। तो हमारी जावा में दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, एक स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, एक डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज व्हाट इज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म? मेथड ओवरलोडिंग। हम लोग एक ही क्लास में एक ही नाम के दो मेथड्स बना सकते हैं। ओके, पर उनके अंदर जो पैरामीटर पास करेंगे वो डिफरेंट पैरामीटर होंगे। ओके, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, हम लोग किसी क्लास के किसी मेथड को ओवरराइड कर दें, है ना, उसको नई डेफिनेशन प्रोवाइड कर दें, तो वो होता है डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को और अच्छे से समझेंगे इन कमिंग वीडियोस। फॉर नाउ, thank you, and let's meet in our next video. If you are new to our channel, please subscribe our channel and hit on the bell icon for the latest updates.